Good morning, students. Last class we have discussed about the development of the embryo, and we have discussed about the dicot, typical dicot embryo, and a typical monocot embryo. And in case of monocot, already have discussed the differences between these two. They are coleoptile as well as the sheath-like structure. Both the condition that is called coleorrhiza and coleoptile, both are present. And it is plumal as well as the radical here also, and here also that shoot apex and the radical is also present here. So already I discussed about the differentiation, I think so, the monocot and dicot seed, and the monocot and dicot seed already I have made the differences, as well as I think the types of seeds also means some seeds are non-albuminous, and where the residual endosperm is totally even no present here, and it is completely consumed for the embryo development. In case of the albuminous seeds, their residual endosperm is present. Perisperm, one more term is that it is very important. In some seeds such as the black pepper, their remnants of nucellus are also persist, and that is called the perisperm. Integuments of the ovules harden as the tough protective seed. Micropyle is present to allow which one entry of oxygen and water, and during the seed maturation, there is also terms of dormancy is coming here. The water content is reduced and seeds become relatively dry, so that the general metabolic activity of the embryo slows down. These things already we have discussed earlier. So today we are discussing about the advantages of seeds. Okay, what are the advantages of seeds? Seeds are formed, and then how the seeds are helping us. The seeds help the species to spread to other areas by dispersal. One more term is the seed dispersal. It may be air dispersal, it may be the water dispersal, different agencies are there. So dispersal of the seed means the throwing out of the seeds and to another region, so that they can grow in another place also. They generate the new combination leading to the variation. Why we are saying so? Because it is the product of sexual reproduction. That's why the combinations are also coming, and the variations are also coming because two parents are involved, and as well as the variations are also coming there because meiosis, cell division is going on. Seeds are stored and used as food throughout the year, and they can be used in favorable season. These two points we can discuss together also. They can be stored and they can be used as food in the future, and as well as they can be used in a favorable season depending on their viability. Ye jo viability condition means how much they can be surviving. That is called actually viability here. And one more point we can also discuss here. This can be stored for long time as food source. Which one? Seeds. Advantage of seeds. Some points are also written here. So for long time as food source. एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है. कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक तो ल्यूपिनस आर्कटिकस. ल्यूपिनस आर्कटिकस इट्स अ प्लांट वेयर इट इज आर्कटिक, टुंड्रा आर्कटिक में ये होता है. कोल्डेस्ट वायबल सीड रिमेन डोमेंट फॉर 10,000 ईयर्स. बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. नेम द प्लांट हु सीड्स आर वायबल फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स. So you have to write down the name of Lupinus arcticus. One more is there, date palm, Phoenix dactylifera. Phoenix dactylifera. There it also surviving for how many years here? 2,000 years old. So these two questions sometimes come in the question. So at that's why these things you have to read. They are the basis of agriculture. Seeds, without seeds agriculture is not possible. Hard seed coat provide protection to the young embryo. And one more point you have to learn here, some plants are producing also large number of seeds, है ना, large number of seeds. एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे ऑर्किड्स में, जैसे ओरोब्रैंकी, इसका नाम क्या है? ओरोब्रैंकी, स्ट्रिगना, ये जो सब है, स्ट्रिगा इज ऑल्सो देयर, एज वेल एज द ओरोब्रैंकी इज ऑल्सो देयर. Orchids are producing which one? Fruits with large number of seeds. So here 4-5 points are there that you have to remember.
Okay, so now we are coming about the, so seeds are over, as well as the monocot and dicot seed we have made the differentiation, and here aleurone layers are present in case of monocot seed, aleurone layer is absent here, coleoptile coleorhiza present here, here it is absent, only it is radicle and plumule is present there, and here definitely it is one cotyledon containing, here two cotyledons are there, and the reserve food material usually stored inside the एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है ना, आइदर इन कॉटिलेडन और इन एंडोस्पर्म. ओके, सो दीज आर द डिफरेंशिएशन. नाउ वी आर कमिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. ओके, सो ओवरी जो है, टोटल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में. तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, PERICARP. ये पेरिकार्प किस किस से कॉन्सिस्ट होता है ना, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. लुक एट दैट, एपिकार्प एकदम बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एपिकार्प. देन मिडिल जो फ्लैशी पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोकार्प. एंड इनसाइड इनर मोस्ट जो कोट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प. एंड तीनों टोटल ये तीनों टोटल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प. ओके, जैसे फ्लैशी भी हो सकता है, ये पेरिकार्प में भी फ्लैशी, एग्जाम्पल जो है गुआवा, टोमेटोज एक्सेट्रा, मे बी लेदरी एग्जाम्पल, और ड्राई दैट इज पी, बीन एक्सेट्रा. मैंने ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की है, पेरिकार्प फ्लैशी है या ड्राई है. पेरिकार्प की 3 layers ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हियर, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, है ना. पेरिकार्प प्रोटेक्ट्स द सीड्स एंड हेल्प्स इन देयर डिस्पर्शन. ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है. ये सीड है, सीड की जो आउटर मोस्ट कोट है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एंडोकार्प, एंड उसके बाहर जो है दैट इज मेसोकार्प. आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है फ्रूट की, दैट इज कॉल्ड एपिकार्प. सो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों मिला के क्या कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग हियर, द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ये सीड की डायग्राम ऑलरेडी मैंने दे के रखा था पहले से. तो बीन सीड, हेयर माइक्रोपाइल, दिस इज कैस्टर सीड की डायग्राम है, दिस इज मेज की है. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज सीड की है. यहाँ पे एल्यूरोन लेयर आपको दिखाया गया है, ये एंडोस्पर्म, और यहाँ पे स्कूटेलम, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉटलेडन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम. एंड हेयर कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्ल्यूमल, रेडिकल. This is the maize structure, maize seed structure. Now we are coming for the false type of fruits. First is the true fruit, next one is the false fruit, and third one is the parthenocarpic fruit. Okay, so 3 types of fruits are there that we have to discuss now. So first ट्रू फ्रूट्स इज दिस फ्रूट्स ऑफ डेवलप फ्रॉम व्हिच वन, अगर डायरेक्टली ओवरी से डेवलप्ड हो जाए, नॉर्मली जो फ्रूट्स होता है दे आर डेवलपिंग फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ फ्लावर एंड नॉट अदर एसोसिएटेड पार्ट. मतलब थैलामास भी नहीं होगा, किसी का पेटल्स भी, सेपल्स भी, ये सब टेक पार्ट नहीं करेगा. स्टिग्मास, ओनली ओवरी जब फ्रूट फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा, ओवरी ऑफ अ फ्लावर not associated with the any non-carpillary part is termed as true fruit. नॉन कार्पिलरी समझ में आ गया आपको, स्टैमेन भी नहीं होगा आपके पास, जो है पेटल्स, है ना, देन सेपल्स, देन थैलामास, है ना, देन रेडिकल, ये सब कुछ भी चीज रेसेप्टेकल कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रू फ्रूट. एग्जाम्पल जैसे मैंगो, टोमेटोज एक्सेट्रा, है ना. एंड फॉल्स फ्रूट किसको बोलेंगे ना, द फ्रूट डिराइव फ्रॉम ओवरी अलॉन्ग विद द अदर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स जस्ट लाइक द थैलामास. लुक एट देयर, here apple and strawberry both are actually called the false fruit. Cashew nut is also there. So apple structure is also given here, strawberry is also given here, so they are called false fruit. Why? Because thalamus along with the ovary that is actually converted into total fruit. जो हम खा रहे हैं that is actually thalamus part खाते हैं. thalamus मतलब जिसके ऊपर जो floral parts arrange रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, thalamus. So here also strawberry में वही condition है, तो that's why that is called actually false fruit. Clear? ट्रू फ्रूट ओवर फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट में ओनली ओवरी टेक पार्ट करेगा, एंड यहाँ पे ओवरी के साथ अदर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स ऑल्सो कैन टेक पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सम फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम विदाउट अंडरगोइंग एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. एग्जाम्पल कौन सा है, बनाना है,
और कैन बी, ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, कोई हार्मोन को अप्लाई करो तो क्या हो जाता है ना, पार्थेनोकार्पिक जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तो इसमें ये सब क्या करते हैं ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, ठीक है। तो आप ये सब इसको बोलते हैं कि बाय हार्मोन वी कैन इंट्रोड्यूस टू द प्रोडक्शन ऑफ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। नाउ वी आर कमिंग, ये तो हो गया नॉर्मल जो फ्रूट फॉर्मेशन, नॉर्मल जो सीड फॉर्मेशन, नॉर्मल कैटेगरी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हियर। नाउ वी आर कमिंग फॉर स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आपको दो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, एक तो है एपोमिक्सिस कंडीशन और एक है पॉलीएम्ब्रायोनिक कंडीशन, दैट यू ऑल्सो डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। ये है स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोसेस नहीं है ये। तो इसमें क्या होता है ना, देयर आर सम प्लांट्स, स्पेशली ग्रास टाइप जो होता है ना, व्हिच हैव द एबिलिटी टू डेवलप सीड्स। यहाँ पे दोनों के अंदर एक बार आपको डिफरेंस पहले से ही समझ लो तो बात पहले से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेवलप सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड की प्रोडक्शन हो रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या कंडीशन आ रहे, विदाउट फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। दोनों में कंडीशन समझ में आ गए। एक है पार्थेनोकार्पिक जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहे, और एपोमिक्सिस इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ फेनोमेनन बाय व्हिच व्हाट इज हैपनिंग देयर, सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दस डेवलपमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स, यहाँ पे हम सीड्स ले रहे हैं विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, फ्यूशन, है ना, इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस। अभी एपो का मतलब क्या है ना, विदाउट, मिक्सिस का मतलब क्या है, मिक्सिंग। जिस प्रोसेस में विदाउट मिक्सिंग, विदाउट सिनगैमी, और सिनगैमी कब होता है, जब मियोसिस होता है। मियोसिस होने से क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन में सिनगैमी प्रोडक्शन आता है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। तो ये दोनों प्रोसेस जहाँ पे नहीं होगा और जहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स मतलब सीड की डेवलपमेंट होगा विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस, ओके। Now we are coming here. Apomixis means, apo means without and mixis means the mixing. It is a form of, ये सबसे बढ़िया इसकी डेफिनेशन होता है कि it is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. आपको लगेगा कि it is actually a asexual mode of reproduction, but actually ये mimics किसको करते हैं ना, sexual reproduction को mimics करते हैं। तो now here कुछ बहुत categories है, categories मतलब kinds of apomixis जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू होता है two kinds of apomixis in flowering plants। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगामोस्पर्मी। लुक एट हियर, व्हाट इज दैट, एगामोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू भी विदाउट मिक्सिंग आप कर रहे हो प्रोडक्शन, है ना, प्रोपागेल्स प्रोडक्शन कर रहे हो विदाउट मिक्सिंग या विदाउट मियोसिस। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि माइटोसिस में होता है प्रोडक्शन, और वेजिटेटिव पार्टी क्या करते हैं ना, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और एगामोस्पर्मी में अगेन डिवीजन है, कौन कौन सा है ना, एगामोस्पर्मी फॉलोइंग कुछ प्रोसेस में हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस इज एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो डायरेक्टली। लुक एट देयर हियर, जस्ट वेरी डेलिकेट डिफरेंसेस आर देयर। आपको एक बार बहुत अच्छे से इसको समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, किसकी फॉर्मेशन हो रही है ना, एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स। अच्छा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पहले से हम क्लियर कर देते हैं। गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे ना, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट आपको पता है, क्योंकि हम इधर एम्ब्रायो के बारे में बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे ना, एम्ब्रायोसैक को, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, एम्ब्रायोसैक को बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइटिक कंडीशन कौन सा है ना, ओवरी एंड ओव्यूल कंडीशन, ठीक है। समझ में आई बात, ओव्यूल अगर हो तो ओव्यूल की जितने सारी सेल है दे आर एक्चुअली कमिंग इन ट्वाइस एंड डिप्लॉयड। अभी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन हो रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल की डिवीजन के बाद, मेगास्पोर टेट्राड, उसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एम्ब्रायोसैक, ठीक है। बात समझ में आई। और एम्ब्रायोसैक जो है दैट इज एक्चुअली स्पोरोफाइट, और एम्ब्रायोसैक के अंदर जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे हैं,
है ना, दैट इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, तो नाउ अगेन जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे किसके थ्रू हो रहे, सिनगैम के थ्रू हो रहे, है ना। तो अभी देखो स्पोरोफाइटिक सेल्स कौन सा है ना, ओव्यूल के अंदर क्या क्या है, न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है ऑफ ओव्यूल, है ना। स्पोरोफाइटिक सेल सब किसका, ओव्यूल का। मेन प्लांट बॉडी किसका होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। और ओव्यूल के अंदर जो ओवम प्रोडक्शन होता है या एग प्रोडक्शन होता है, दैट इज एक्चुअली दैट एग, एंड एग के साथ साथ जो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हो रहे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस और इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल अदर देन जाइगोट, जाइगोट भी क्या है, ट्वाइसन है ना। तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। तो जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन तो डायरेक्टली होता है, दैट इज नॉर्मल प्रोसेस। बट जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन किससे होगा ना, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, ठीक है। बात आपको और एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इधर से। जब भी आप एम्ब्रायो फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एम्ब्रायो सैक जो फॉर्मेशन हो रहे, यहाँ पे जो न्यूसेलस वगैरह है आपके पास, है ना, ये देखो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये जो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्चुअली द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। और यहाँ पे जो मान लो न्यूसेलस है या इंटेगुमेंट है ना, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट, तो टोटल आपके एम्ब्रायो की जो ये स्ट्रक्चर आप देख लो, यहाँ पे न्यूसेलस जो है, इंटेगुमेंट जो है, ये टोटल किस में आ जाएगा, स्पोरोफाइटिक सेल की पार्ट आ जाएगा, स्पोरोफाइटिक पार्ट, है ना। और जब एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली गैमेटोफाइटिक पार्ट, ठीक है। इसमें सभी हैप्लॉइड कंडीशन। अभी क्या है ना, जब भी न्यूसेलस की या इंटेगुमेंट की कोई भी सेल दैट इज ट्वाइसन एक्सेप्ट द जाइगोट, है ना, तो जाइगोट भी डिप्लॉयड है, इसलिए डिप्लॉयड सेल कौन सा, ओव्यूल की जो स्पोरोफाइटिक सेल्स है आइदर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से अगर एम्ब्रायो डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, ठीक है, that is called adventive embryony. Next one we are coming for next term, that is called parthenogenesis, formation of embryo from unfertilized egg, ठीक है। एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रहे कहाँ से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस। देन इट इज कमिंग एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। एपोस्पोरी किसको बोलेंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। किससे फॉर्मेशन होगा, देखो गैमेटोफाइट, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे, यहाँ पे गैमेटोफाइट का मतलब कि एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन हो रहे, किससे हो रहे, फ्रॉम एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक दैट इज न्यूसेलस और इंटेगुमेंट विदाउट मियोसिस, एंड एम्ब्रायो सैक इज नाउ डिप्लॉयड इन नेचर, एपोस्पोरी कंडीशन। अभी क्या है, नेक्स्ट वन इज द एपोगैमी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक दैट इज एम्ब्रायो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द गैमेटोफाइट, एम्ब्रायो सैक की कोई सा भी सेल से, कौन कौन सा हो सकता है, एक्सेप्ट द एग, एग को छोड़ के एम्ब्रायो सैक और कौन कौन सा हो सकता है ना, एंटीबोडल सेल या सिनार्जिड्स, ठीक है। इन दोनों किसी में से अगर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एपोगैमी, ठीक है। एम्ब्रायो ये इसमें एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि एंटीबोडल सेल भी हैप्लॉइड है और सिनार्जिड्स भी हैप्लॉइड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड और स्टेराइल हो जाएगा एम्ब्रायो, ठीक है। और डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या है ना, मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम एम्ब्रायो सैक विदाउट मियोसिस। तो डिप्लोस्पोरी मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो है, यहाँ पे देखो मैं चारों कंडीशन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रायो फॉर्मेशन कर रहे विदाउट मियोसिस, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल जब मेयोसिस में थ्रू जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर टेट्राड, एंड देन मेगास्पोर टेट्राड जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट इज अगेन डिवाइड इन 3 टाइम्स टू फॉर्म व्हिच वन, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। तो अगर मेगास्पोर उस कंडीशन में ना गए, डायरेक्टली क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन कर दी, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रायो सैक भी क्या हो जाएगा ना, ट्वाइसन हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, और जो एम्ब्रायो सैक की सेल है वो भी डिप्लॉयड आएगा, ठीक है। तो चारों कंडीशन में आपको इधर ही बता देती हूँ एक बार। ये हो गया आपकी क्या है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर क्या है ना, मेगास्पोर मदर सेल और अदर टिश्यू। अदर टिश्यू का मतलब क्या क्या आ जाएगा ना, इंटेगुमेंट आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा न्यूसेलस,
ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल अगर मियोसिस के थ्रू गए, मतलब मेगास्पोर टेट्राड, उसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज, तो ये एम्ब्रायोसैक क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रायोसैक कौन सा प्लॉइडी में आएगा, हैप्लॉइड कंडीशन। एंड एम्ब्रायोसैक की सेल भी किस कंडीशन में आएगा, हैप्लॉइड कंडीशन। इधर से अगर आप एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे हैं तो एट दैट कंडीशन आइदर एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स के थ्रू एक्सेप्ट एग, अगर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे हैं एट दैट कंडीशन इट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हिच वन, एपोगैमी कंडीशन। ठीक है। तो एपोगैमी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये भी अनयूजुअल कंडीशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो एंटीपोडल सेल मतलब एम्ब्रायोसैक की जो सेल है, मतलब गैमेटोफाइट की जो सेल है, उसकी एक को छोड़ के बाकी जो सेल है आइदर एंटीपोडल या सिनर्जिस के थ्रू अगर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे, दैट इज कॉल्ड एपोगैमी। ठीक है। तो एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, इसका हैप्लॉइड कंडीशन आएगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये हैप्लॉइड कंडीशन है। डिप्लोस्पोरी क्या बोलते हैं ना, जो मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या करते हैं डिप्लोस्पोरी में, ये मदर सेल और माइटोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रायोसैक विदाउट मियोसिस। तो एम्ब्रायोसैक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्ब्रायोसैक ट्वाइसन, ये एम्ब्रायोसैक कंडीशन ES, एम्ब्रायोसैक क्या आ जाएगा, ट्वाइसन, एंड एम्ब्रायोसैक की सेल भी ट्वाइसन आ जाएगा, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है। ये अनयूजुअल कंडीशन हम बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एपोमिक्सिस कंडीशन, है ना, विदाउट मिक्सिंग। यहाँ पे जो जो कंडीशन आपको दिख रहे हैं वो सब विदाउट मिक्सिंग कंडीशन। इसके बाद एपोस्पोरी, जहाँ पे अदर टिश्यू जैसे इंटेगुमेंट हो या न्यूसेलस हो, इसकी सेल अगर डायरेक्टली एम्ब्रायो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइटिक सेल से क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन कर रहे हैं विदाउट एनी मियोसिस। तो एट दैट कंडीशन द एम्ब्रायोसैक विल बी डिप्लॉयड, है ना। आप देखो यहाँ एम्ब्रायोसैक क्या डिप्लॉयड कंडीशन देके रखा है। और एडवेंटिशियस एम्ब्रायोनी में क्या होता है ना, डायरेक्ट एम्ब्रायो फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये एपोस्पोरी कंडीशन, और यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे, कहाँ से फॉर्मेशन हो रहे ना, आइदर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से, अदर देन जाइगोट से ये फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रायोनी। तो ये चारों है अनयूजुअल कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, दैट इज एक्सेप्शनल स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये 4 प्रोसेस में हो सकता है, 4 कैटेगरी में हो सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, दे आर विदाउट मिक्सिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच वन ना, एनी टाइप ऑफ, मतलब कोई मियोसिस भी नहीं हो रहे, ना तो कोई सिंगैमी हो रहे, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स और सीड्स। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एपोमिक्सिस। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो हाइब्रिड सीड्स है, ये एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इफ हाइब्रिड सीड्स आर मेड इनटू एपोमिक्सिस कंडीशन और एपोमिक्टिक, देयर इज डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो ना, कोई सिग्रीगेशन, कोई सीड मतलब क्या, कोई मियोसिस नहीं हो रहे, कोई सिंगैमी नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली क्या वेरिएशन भी नहीं आ रहे, और साथ ही साथ जब वेरिएशन नहीं आ रहे, कोई कैरेक्टर जो आप एज इट इज़ रखना चाहते हो वो एज इट इज़ हो जाएगा, कोई सिग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाएगा हाइब्रिड से और न्यू वेराइटी कोई प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, हाइब्रिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वही आ जाएगा और वही आपको चाहिए, है ना। देन द फार्मर्स नीड नॉट टू बाय द हाइब्रिड सीड्स ईयर आफ्टर ईयर एंड कैन यूज द एपोमिक्टिक सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप। मतलब एपोमिक्टिक सीड में क्या होता है, कोई चेंज नहीं है, जो आपको चाहिए हाइब्रिड के अंदर वही बराबर रह जाएगा, तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंस है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। पॉलीएम्ब्रायोनी किसको बोलते हैं ना, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रायो इन अ सीड। एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रायो रहता है, अगर मोर देन 1 एम्ब्रायो रहता है और दैट एम्ब्रायो इज डेवलप फ्रॉम व्हिच वन, न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस जो सराउंडिंग सेल्स होता है, एम्ब्रायो की जो सराउंडिंग सेल्स होता है, तो सराउंडिंग सेल से जो न्यूसेलस सेल से अगर एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहे एंड दैट एम्ब्रायो सेट्स, यहाँ पे बोला है ना, न्यूसेलस सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रायो सेट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रायो सेक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायोस। एम्ब्रायो सेक के अंदर ओनली जाइगोट फॉर्मेशन में एम्ब्रायो होगा, लेकिन मान लो कोई न्यूसेलस सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रायो सेक स्टार्ट डिवाइड करना स्टार्ट कर दे और एम्ब्रायो सेक के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, प्रोट्रूड जिसको बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रायोनी। स्पेशली किस में दिखते हैं ना, जैसे साइट्रस और मैंगो वैराइटी से क्वेश्चन भी आता है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। पॉलीएम्ब्रायोनी की क्वेश्चंस भी है
अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये जितना डिफरेंसेस है नेक्स्ट विल डिस्कस दैट वन. So this is the last of this chapter is now over. So next day we'll discuss about the differentiation as well as the different questions also. Okay.